Namaskar, I welcome you all to this series on war strategies. Today I'll introduce an ancient Chinese proverb and an interesting story associated with that from the book The 36 Strategies. While the other Chinese military doctrines and strategies, they are classics like the Sun Tzu's Art of War, talk about the military organization, battlefield tactics, and other aspects of the war. The ancient proverbs that are mentioned in this book, they are more applicable to diplomacy, politics, and espionage, the secret wars. Psychological warfare is an important aspect of the Chinese warcraft, and the ancient proverbs that are mentioned in this book and their folk tales, they highlight that part. So today we'll begin with the very first strategy of this book, that is fool the emperor to cross the sea. This proverb, this strategy, has a very interesting story behind its saying. और वो स्टोरी है टैंग डायनेस्टी से रिलेटेड. Once their emperor Taejong was on a campaign against the Koreans. So their general devised a plan that they will cross the Yellow Sea to go to the Korean peninsula and then attack the Koreans behind their lines on a surprise attack. Everything was very well planned in the scheme, but there was a flaw. Their emperor Taejong was badly afraid with the large water bodies. So crossing the Yellow Sea was not at all possible with the emperor. Then the general decided to devise a scheme. We can say he decided to fool the emperor. He covered a large ship in a way that the ship looked like a countryside estate. He hung the banners all over there and then decorated the large ship in such a way so that the ocean does not reflect from the surface, and the emperor would consider that as somebody's farmhouse and somebody's mansion. Then he told his emperor that some aristocrat of the city has invited him for a dinner tonight and he must go. So the emperor accepted the invite and then he went to the ship as if he is going to somebody's farmhouse. He dined there, he enjoyed the music and dance throughout the whole night while the ship was sailing very slowly into the sea, and by the morning they crossed the sea. So that's why the proverb is fool the emperor to cross the sea. लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स हैं चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक कल्चर में जो इस प्रोवर्ब से एसोसिएटेड है. उनमें से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को आज हम कवर करते हैं, which is mentioned in this book. This story is about the varying states period of China. As we know that particular period of the Chinese ancient history is associated with the warfare and military reforms and other bureaucratic reforms kind of things. And the Qin dynasty ruled during that particular phase. तो ये स्टोरी उसी डायनेस्टी से रिलेटेड है. And it is about, it can be called a historical incident or a story. So it says that there was a time in 225 BC when the state of Qin became so much powerful. And after hundreds of years of gradually gathering the power, he became aggressive as well. He decided to overcome all his opponents in the region. So one by one, he defeated all the powerful states. And the only remaining powerful state was now the Chu. So the king of Qin decided to now attack the Chu. He called his general, whose name was Wang Jian, and he asked him to attack and conquer the Chu state. अब इससे एक साल पहले भी चीन ने अपने एक दूसरे जनरल को वहाँ पे भेजा था, द जनरल ली
Qing, and that general faced a very humiliating defeat from the Chu because Chu was also a very powerful state. Military wise, भी their capabilities were equal to the Qing. तो अब की बार जो जनरल था वैंग जियान, he was a bit older and experienced, and he did not wanted to repeat the same mistake of his predecessor. So instead of directly attacking the state, he decided a different kind of scheme. उसने वहाँ पर चिन एंड चू का जो बॉर्डर था वहाँ पर एक स्टॉकेट बनाया, फोर्टिफाइड स्टॉकेट, एंड वहाँ पर ही डिसाइडेड टू सेट डाउन विथ हिज ट्रूप्स. अब जैसे ही ये न्यूज़, हालांकि वो अपनी टेरिटरी के अंदर ही थे, बट आफ्टर ऑल दे आर ऑन द बॉर्डर विद अ हैवी ट्रूप. अब ये न्यूज़ जब चू राज्य के अंदर गई तो ऑब्वियसली वहाँ पर पैनिक हुआ, एंड द किंग called all his allies and his troops and ordered them to now go to the borders. तो अब चू के भी जो ट्रूप्स थे वो बॉर्डर पर आ गए और उधर चीन वाली साइड में वो लोग अपने बाड़ा लगाकर बैठे ही हुए थे. नाउ व्हाट हैपेंड, चू के जो कमांडर्स थे वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट थे बिकॉज उन्होंने पिछली बार इनके जनरल को हराया था. तो वो डेली बॉर्डर पर आते थे एंड दे यूज टू चैलेंज द जनरल. वो उसे बोलते थे टू कम आउट एंड फाइट विद अस. लेकिन जो जनरल वैंग जियान था, ही वॉज वेरी क्लेवर. वो उनके सभी टॉन्ट्स को इग्नोर करता रहता था. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हुआ दैट दे सॉ द जनरल एंड हिज ट्रूप्स स्विमिंग टू द रिवर्स एंड लेक्स नियर द बॉर्डर, एंड वो वहाँ पर काफ़ी डांसिंग एंड म्यूज़िक के साथ इंजॉय करते रहते थे एज इफ दे आर ऑन सम पिकनिक इन द फॉरेस्ट. ऐसा रोज़ रोज़ चलता रहा. ऐसा लगने लगा जैसे कि जनरल वैंग जियान का कोई इरादा ही नहीं है यहाँ पर फाइट करने का. ही इज़ ओनली फॉर सम लेजर एक्टिविटीज़ हियर. एंड वो डेली यही करते थे, अपना पिकनिक मना रहे हैं. दे वर डांसिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक एंड एन्जॉइंग. उनका कुछ भी वॉर काइंड ऑफ प्रिपरेशन वहाँ पर बॉर्डर पे विजिबल नहीं थी. लेकिन ये वो एस्पेक्ट्स थे जो वो दिखा रहे थे. बिहाइंड ऑल दिस, जनरल वैंग जियान वॉज प्रिपेयरिंग हिज आर्मी physically and morally through daily trainings. But the Chu was unaware about this क्योंकि उन्हें जो दिख रहा था वो ये था that they are celebrating and they are enjoying. कुछ महीने बीते, धीरे धीरे पूरा एक साल लगभग बीत गया, and Wang Jian waited inside his stockade for a whole year doing the same kind of activities. अब चू के भी जो ट्रूप्स थे उन्हें लगने लगा that they have no heart and नो इंटेंशन टू फाइट अस. मे बी इनका जनरल काफ़ी बूढ़ा है एंड ही इज़ ओनली हियर टू सेव हिज फेस. अब आ गया है तो यहाँ पे टिका हुआ है एंड ही हैज़ नो इंटेंशन एंड नॉट द गट्स टू फाइट अस. तो धीरे धीरे उनके ट्रूप्स ने अब अपने कैंप से धीरे धीरे कंट्री में लौटना शुरू कर दिया. सभी वापस जाने लगे बोल के कि यहाँ कुछ वॉर नहीं होने वाला है. आफ्टर ऑल इट्स बीइंग अ ईयर और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. वैंग जियान वॉज वेटिंग इनसाइड द स्टॉकेट. अब एक साल बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो जो फाइनल बचा हुआ ट्रूप था चू राज्य का, दैट ट्रूप ऑल्सो डिसाइडेड टू नाउ गिव अप द होप एंड ही ब्रोक हिज कैंप एंड रिटर्न टू द कैपिटल. नाउ व्हेन दिस लास्ट ट्रूप वॉज रिटर्निंग बैक टू द कैपिटल, दैट टाइम सडनली वैंग जियांग अलर्टेड हिज ट्रूप्स एंड नाउ दे अटैक्ड दिस रिट्रीटिंग आर्मी. और माना जाता है कि रिट्रीटिंग आर्मी जनरली वनरेबल होती है अटैक से, और अब ये तो एक सरप्राइज अटैक था. देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इनटू दिस. तो ऑब्वियसली चू के जो ट्रूप्स थे वो उनमें पैनिक हो गया. दे बिकम केओस्ड और वो संभाल नहीं पाए. दे सफर्ड सीवियर लॉसेस. इधर के चू का जो राजा था, जब उसे ये पता चला तो ऑब्वियसली उसके राज्य में ऑलरेडी भगदड़ मच गई थी और अब ऐसी सिचुएशन में अपने ट्रूप्स को असेंबल कर पाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था. सो बेसिकली देन वैंग जियान ने वेरी स्विफ्टली उनके राज्य को इन्वेट किया एंड देन ही कॉन्कर द होल किंगडम एंड सेट अप हिज रूल ओवर देयर. बाद में ये जो चिन डायनेस्टी है, इसे माना भी जाता है दैट दे इस्टेब्लिश द फर्स्ट यूनिफाइड एम्पायर ऑफ द चाइना. सो दिस इज द होल स्टोरी. That first the General Wang Jiang relaxed the enemy's army, and when they get relaxed, then he suddenly attacked
on them. So that is fooling the emperor to cross the sea. मॉरल तो ये है इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का, द कोर फिलॉसफी ये है दैट बैटल में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ पैरामाउंट, अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट. अगर आपका अपोनेंट विजिलियंट है, ही इज़ वेरी नाउ, तो डेफिनेटली आपके जो यूजुअल ट्रैप्स हैं वो उनमें फंस जाएगा. वो आपके ट्रैप्स को पहचान लेगा क्योंकि वो अभी विजिलियंट है, इज़ अलर्ट. So the first thing should be to relax a vigilant opponent. And now when the opponent become relaxed and वो आपके ऊपर से अपनी attention भी हटा ले धीरे धीरे, then you should attack and give him surprise, to a surprise attack. इसमें एक psychological element है that is about habituation, आदी हो जाना. जब आप किसी की एक पर्टिकुलर एक्ट के बहुत लंबे समय तक आप उसे देखते हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं, देन उसके बाद वहाँ पे किसी भी तरीके का सिमुलेशन जो है, स्टिमुलेट नहीं होते हैं आप वहाँ पे उत्तेजक होने या उकसाने के चांसेस नहीं रहते हैं और आप धीरे धीरे इनसेंसिटिव हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर. एंड आपके इसी रिलैक्स होने का आपके अपोनेंट फ़ायदा उठा सकते हैं. दे कैन अटैक. दैट्स द होल स्ट्रैटेजी. ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं चाइनीज़ फोक टेल्स में, एंशियंट प्रोवर्ब्स में चाइना की, जिन्हें हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे. उनके जो इंटरेस्टिंग मूव्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे. जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि चाइना की जो वॉर क्राफ्ट है, इट इज़ मोर अबाउट द डिसेप्शन, डिसीट, टैक्टिक्स, ट्रिचरियस फाइट एंड ऑल. और इसका डोज इतना ज़्यादा है दैट समटाइम्स ऐसा लगता है दैट द स्पिरिट ऑफ वॉर ही वहाँ पे नहीं है. तो स्पिरिट के लेवल पर तो इनसे कुछ हम खास सीख नहीं सकते, बट हमारी इनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रीड करने की एक अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज जैसा हम इन्हें ले सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइज जैसा ले सकते हैं. इसलिए भी हमें अब इन्हें इस तरीके की चीज़ों को रीड करना चाहिए. जनरली हमारे जो यूथ हैं, जब भी कोई इवेंट होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू द करंट इवेंट, पॉलिटिकल हैपनिंग्स, ग्लोबल हैपनिंग्स, कुछ भी अगर होता है तो हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि वी टेंड टू एनालाइज द थिंग्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अभी जो चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो है, जिस तरीके के अभी चेंजेस हो रहे हैं इन दिस पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, अब धीरे धीरे हमें आदत डालनी चाहिए कि हम चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन से देखें. साइकोलॉजिकल डायमेंशन, साइंटिफिक डायमेंशन, इंटेलिजेंस के माइंडसेट के साथ भी देखें. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डिसाइडेड टू शेयर ऑल दीज फोक टेल्स एंड ऑल दीज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वॉर स्ट्रैटेजीज ऑफ द वर्ल्ड. आगे भी हम इस तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम द चाइना बट फ्रॉम अदर डॉक्ट्रीन्स एज वेल. नमस्कार.